Hello, good morning, children. Welcome back to your English class. Children, do you remember yesterday we were doing lesson number 8 kites, kites everywhere. Let's have 2 minutes recap of yesterday's class. Children, yesterday we saw in this lesson till where we have reached in this lesson. In this lesson, you can see about the festivals. It's not only Indian festival, but the festivals of other country also. How they are celebrating the festival, when they are celebrating the festival in different ways. Okay, like us only. In this story, we are going to learn about Makar Sankranti, kites, about the festival of kites. How people of other country also enjoy kite flying. This is a family where you can see the relationship between the grandfather and grandchild, that is Monu. What is the name of the child? Monu. You can see how happy they are. वो लोग कितने खुश है एक दूसरे के साथ ना. Come on, let's start. Dada, I am excited, said Monu, hopping on the bed. Tomorrow is मकर संक्रांति. मोनू अपने दादा को बोलता है, दादा आई एम वेरी एक्साइटेड, यानी मैं बहुत ही लाइक वो हूँ एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी है ना कि कल मकर संक्रांति है. ये सेड दादा विथ लव, पापा हैज़ बॉट सच अ बिग काइट फॉर मी, आई विल हैव फन फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस विथ माई फ्रेंड्स. है ना कि पापा ने मेरे लिए है ना कितना बड़ी काइट लाए हैं और मैं तो टेरेस पे बहुत मज़े करूँगा काइट फ्लाई करते करते. टेरेस मीन्स छत है ना, टेरेस. Children, even you fly kites on the terrace with your friends, na? Even I hope you all enjoy these flying kites. Yes, you will have fun, smile दादा. है ना, दादा ने कहा हाँ तुम बहुत मज़े करना. Suddenly मोनू stopped hopping. दादा, I have a question. Why do we fly kites on मकर संक्रांति? है ना, आप भी बहुत क्वेश्चन पुट अप करते हो ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के साथ में, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. वैसे ही मोनू ने अपने दादा को क्वेश्चन पूछा कि हम मकर संक्रांति पे काइट क्यों फ्लाई करते हैं. है ना. ओके चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाई डू वी फ्लाई काइट्स? Yes or no? No? Okay, come on, let's see. Why do we fly kites? Children, you remember, do you know that we celebrate Makar Sankranti in winter only? है ना, 14th जनवरी को विंटर जब बहुत सर्दी होती है तभी हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, राइट. हाँ, अब एक चीज़ बताओ चिल्ड्रेन, जब बहुत सर्दी होती है वी लाइक टू बी इन अ सनलाइट. है ना, हमें सनलाइट में खड़े रहना बहुत अच्छा लगता है ना. यस. सो हम सनलाइट में क्यों रहते हैं? ताकि हम हेल्दी रहें और हमारी बॉडी को थोड़ा सा लाइक विटामिन मिले, विटामिन डी मिले. और हम घर में अगर ठंडी में ही बैठे रहेंगे पूरे टाइम, सर्दी में रहेंगे अंदर ही अंदर, तो हम बीमार पड़ सकते हैं. है ना. काइट फ्लाई करने से क्या होता है, हमें सनलाइट भी मिलती है, तो इससे हम और मज़े के मज़े हो जाते हैं, फ़न भी बहुत अच्छा हम लोग एंजॉय भी करते हैं. Our body needs sunlight to be healthy. हमें sunlight क्यों चाहिए? To be healthy. In winter we stay indoors and fall ill easily. विंटर में अगर हम खाली घर में अंदर ही अंदर रहेंगे तो क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे. But when we go out to fly kites, our body gets sunlight. और जब हम काइट फ्लाई करने जाते हैं तो हमें सनलाइट मिलती है. We also have fun, explained दादा. Do people in other countries also fly kites? asked Monu. बेटा इंडिया में तो हम काइट फ्लाइट्स करते हैं, क्या अदर कंट्रीज़ में भी काइट फ्लाई करते हैं क्या? येस चिल्ड्रेन, लेट्स सी हाउ दे एंजॉय द फेस्टिवल, व्हेन दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल. चलो देखते हैं कौन सी कंट्री का लाइक काइट फ्लाइंग होती है और वहाँ पे कैसे करते हैं ना. Dada nodded his head and said, in China on New Year's Day, people show respect to the dragon by flying dragon kites. China में कभी काइट उड़ाते हैं? न्यू ईयर का, when they fly the kites on New Year Day. है ना. And which shape of the kite they are flying, children? They are flying dragon kites. Dragon kites. You can see in this picture. This is dragon, है ना. See the face is very fierce and angry. ये कितना डरावना, fierce means डरावना और गुस्से वाला है. And it is a long kite. कितनी बड़ी kite है. It's very heavy also, children. बहुत भारी होती है ना. So one person cannot fly this kite. वन पर्सन अलोन कैनॉट, एक इंसान अकेला खाली फ्लाइट का ही नहीं कर सकता है ना. हमारी तो काइट पेपर की बनी होती है, बहुत लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है. बट है ना, इनकी जो काइट होती है चाइना में बहुत हैवी और लॉन्ग होती है.
इसके लिए उसको ना बहुत सारे ग्रुप चाहिए, एक टीम चाहिए. अ टीम ऑफ पीपल फ्लाइज वन ड्रैगन काइट, है ना. टीम ऑफ पीपल, अ काइट इज वेरी लॉन्ग एंड हैवी. ओके, वाओ, टेल मी मोर सेड मोनू. मोनू को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, मोनू को और भी जानना था. दादा कंटिन्यूड विथ अ स्माइल. दादा उसको बताने लग गए. नाउ कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास, है ना. आज का हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ. इन जापान पीपल फ्लाई काइट्स एट द बर्थ ऑफ अ बेबी. जापान में कब फ्लाई उड़ाते हैं? बर्थ ऑफ अ बेबी. और टू सेलिब्रेट अ गुड राइस हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मीन्स अच्छी जब फसल होती है ना, जब उसको काटते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, है ना. ओके, सो जब चावल, राइस यानी चावल की खेती का जब वो कटिंग करते हैं ना, देन दे उनको काइट फ्लाई करते हैं वो उस खुशी में. और जब एक छोटा सा बेबी घर में आता है ना, बर्थ ऑफ अ बेबी, then only they fly kites. Okay, many Japanese kites have pictures of crane. जापान की kites की पिक्चर पे क्या, काइट में किसकी पिक्चर होती है? Crane. In Japan, people believe that crane brings good luck. What? Crane brings good luck. यानी crane क्या लेके आता है? Good luck. इसलिए उसको है ना बहुत अच्छा माना गया. That's why in kite they are having a picture of crane. Do they have kite fights like us, like we do, दादा? मोनू आस्क्ड, है ना. मोनू पूछता है उनकी भी काइट की फाइट होती है, अपन भी काइट की फाइट मतलब लड़ते ना, ये काटा वो काटा, इसकी काटो उसकी काटो, पता ऐसे करते हैं ना हम भी. हाँ, यस, देयर आर काइट फाइट्स इन जापान. हाँ, जापान वाले भी काइट इसकी काटो, रिप्लाइड दादा. सम पीपल कोट द काइट स्ट्रिंग विद बिट्स ऑफ ग्लास. ओह माय गॉड, excuse me. Listen properly children, pay attention. Some people coat the kite strings with the beads of glass. यानी string क्या होती है? काइट की जो ये डोरी होती है ना चिल्ड्रेन, सी ये, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, है ना. ये जो काइट की जो डोरी होती है वो स्ट्रिंग, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रिंग. रिमेंबर, ये. और इस पे क्या लगा देते हैं? ग्लास. ग्लास मीन्स कांच, है ना. ग्लास मीन्स कांच. ओ माई गॉड, बेटा अगर कांच लगा देंगे तो यू इट्स ईजी दैट यू मे कट योर हैंड ना. ओ माई गॉड. एज अ काइट फ्लाइज थ्रू द एयर, ईच काइट ट्राइज टू कट द स्ट्रिंग ऑफ द अदर. यहाँ पे जब काइट पे ग्लास लगा देते हैं ना, इसकी स्ट्रिंग पे कांच 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 लगा देते हैं, बिट्स ऑफ यानी कांच के टुकड़े. फिर क्या होता है, वो इजीली कांच है ना दूसरी काइट की स्ट्रिंग्स को काट देते हैं. ऐसे काटते हैं जापान में. As the kites fly through the air, each kite tries to cut the sting to the other of the other. Children, this is very dangerous, हाँ. ऐसा कभी ट्राई मत करना आप लोग. Glass, come to the next page. Glass is dangerous, isn't it, दादा? asked मोनू. देखो मोनू भी कितना समझदार है. मोनू भी बोल रहा है अपने दादा को कि ग्लास तो बहुत डेंजरस है ना दादा. हाँ, ग्लास इज डेंजरस. Yes, it is Monu. The kite flyers should be very careful. They should not hurt anyone. हाँ, देखो दादा बोल रहे हैं कि हाँ काइट फ्लायर्स को वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना पड़ता है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए. Do other countries have kite festival? asked Monu. Yes, kite festival take place everywhere, है ना. काइट फेस्टिवल हर जगह होता है बेटा. देखो अच्छे से पढ़ो. काइट फेस्टिवल टेक्स प्लेस एवरीवेयर. खाली इंडिया, जापान और चाइना में नहीं, बाकी कंट्रीज में भी होती है काइट फेस्टिवल. ऑल दीज फेस्टिवल्स, द स्काई इज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स. इन सारी फेस्टिवल में स्काई में क्या होती है? कलरफुल काइट्स, है ना. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एंजॉय फ्लाइंग एंड वॉचिंग काइट, सेट दादा. पूरी दुनिया में, है ना, सारे लोग बहुत एंजॉय करते हैं काइट फ्लाइंग और कलरफुल स्काई देखने के लिए, जहाँ पे पूरी कलरफुल काइट्स होती है. मोनू नॉडेड एंड देन yawned loudly. yawned means सोना. वो नींद आती तो बासी आती ना, जैसे अभी मैम ने किया है. ऐसे हम मुंह खोल के यॉन करते हैं ना, जब हमें नींद आती तो हम मुंह खोल के कैसे करते हैं? यस, उसको बोलते हैं यॉन. अब क्या नाइट थी ना, तो नाइट में अब मोनू को नींद आ रही थी और वो बहुत एक्साइटेड था कि नेक्स्ट डे टुमारो इज़ द मकर संक्रांति, ऐसा करके. नाउ गो टू स्लीप.
यू हैव अ बिजी डे टुमारो सेड दादा। दादा क्या बोलते हैं, मोनू अब सो जाओ, कल तो तुम बहुत बिजी होने वाले हो, कल तुम्हारा बहुत बिजी डे होएगा काइट फ्लाइंग में। Isn't children? So this is a nice lesson. Okay, read this lesson, children, and see why will Monu be busy tomorrow? Monu will be busy in flying the kites, है ना। मोनू किस में बिजी होने वाला है टुमारो? काइट फ्लाइंग में। मोनू विल बी बिजी इन फ्लाइंग द काइट्स टुमारो। चिल्ड्रन, सच अ नाइस लेसन ना। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि इंडिया, चाइना, जापान में कैसे कैसे काइट फ्लाई करते हैं, कौन सी शेप्स की काइट होती है, काइट किसकी बनी होती है, और लाइक रीज़न क्या है ना। हमारा रीज़न है कि हम विंटर में सनलाइट के लिए काइट उड़ाते हैं इंडिया में, चाइना में उसको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और उनको क्या ड्रैगन को बहुत अच्छा मानते हैं, वो ड्रैगन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ड्रैगन को रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो ड्रैगन शेप की काइट उड़ाते हैं। और जापान में जब कोई न्यू बेबी आता है तो उसके सेलिब्रेशन में काइट उड़ाते हैं, है ना। और जब एक गुड राइस हार्वेस्ट, यानी जब गेहूँ राइस का फसल, चावल का फसल अच्छा होता है तो काइट उड़ाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और उनका काइट में कौन सी पिक्चर रहती है? क्रेन, क्योंकि उनका मानना है कि क्रेन क्या लाती है? गुड लक, बिकॉज इट ब्रिंग्स अ गुड लक, है ना। और जापान में क्या करते हैं, काइट की जो स्ट्रिंग्स यानी डोरी होती है उस पर क्या लगा देते हैं? बिट्स ऑफ ग्लास। क्या लगाते हैं? बिट ऑफ ग्लास, यानी कि कांच के टुकड़े, है ना, ताकि वो दूसरों की काइट को ईजिली काट सकें। बट दिस इज़ वेरी डेंजरस, है ना चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, एंड काइट फेस्टिवल टेक प्लेस एवरीवेयर। खाली ये 3 कंट्रीज़ में नहीं होता है, एवरीवेयर, हर जगह काइट का फेस्टिवल होता है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस लेसन ऑफ काइट्स एवरीवेयर। लेसन इटसेल्फ सेज काइट्स एवरीवेयर। लेसन में अपने आप बता रहे हैं कि काइट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह काइट फेस्टिवल होता है। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेसन एंड रीड दिस लेसन चिल्ड्रन। बाय।